Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Vishnu Padaya, Krishna Prishtaya Bhutale, Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswati Deve, Gaurvani Pracharine, Nirvishesha Shunyavadi, Paschatya Deshatarine. Is there? Oh, for me? Hare Krishna. So, very happy to have the association of the wonderful Vaishnavas. आप सबके blessings and permission को लेते हुए. Is everyone there blessing me for this session this morning? Yes? Yes, no? Okay, so we will humbly seek the blessings of all the Vaishnavas, and every day we try to within our devotee community also there are some very wonderful Vaishnavas. Every Vaishnava is so wonderful actually. It's only our challenge of our eyes and our heart that we cannot see, because our heart and our eyes, they are trained to find faults. And even though there may be so many good qualities in devotees around us, we may not be able to see it so easily, isn't it? How many of us face difficulties in seeing good qualities, and how the fault finding is so natural in us, isn't it? It's so natural. We don't have to do any effort to find faults. And to find good quality, we have to do so much effort. Yes or no? And among all of those, I am the one who has most of this propensity to find faults. But then we have so many wonderful Vaishnavas, and today I was trying to derive inspiration from one of our wonderful devotees, His Grace Kushagra Nitai Prabhuji. So it's a wonderful Vaishnava, wonderful qualities. So yes, हम लोग अपनी जर्नी में आगे चलते हैं with special blessings of His Grace Kushagra Nitai Prabhu. So yesterday we were discussing about the importance of offering obeisances, right? Pranam. और कोई आप में से कोई, तो let me quickly ask some questions. कोई आप भक्त का एग्जाम्पल बताइए जिनके बारे में बहुत बताया जाता है कि वो भगवान को प्रणाम करते थे बहुत ज्यादा. कौन है वो? यस, शिला रघुनाथ दास गोस्वामी. कितना ओबिसेंसिस करते थे? 1 plus 2, 1000 plus 2000, right? 1000 to the deities and 2000 to the Vaishnavas. So thank you so much. So now next question. It was an easy question. Next question. Give example where the Lord is offering obeisances. Lord Chaitanya Mahaprabhu. चैतन्य महाप्रभु भी दंडवत प्रणाम कर रहे हैं. किधर? अद्वैताचार्य. हरिदास ठाकुर. South Indian Brahmin. Practically whole Chaitanya Charitamrita, we see Mahaprabhu is falling flat in so many places. He also goes to Alarnath. He is offering obeisances there to also to the deities. And also Mahaprabhu is offering obeisances to all the Vaishnavas. He is setting, because he is a Bhakta avatar. He is exemplifying as a devotee. So Mahaprabhu is the best example of Vaishnava Sadachar as it is. But then even tough question. Give an example जहाँ पे Krishna is offering obeisances from the scripture. Yes, Prabhu. Really? Where? When? Sandipani Muni. Sandipani Muni. Yes. ये प्रभु जी बोल रहे युधिष्ठिर महाराज को भी. जब
द्वारका में होते हैं भगवान, मॉर्निंग में नारद मुनि आते हैं, ही इज ऑफरिंग ऑबिसेंसेस, यस। भगवान नारद मुनि को प्रणाम कर रहे हैं, और कृष्णा ही इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, वो भी प्रणाम करने के महत्व को बता रहे हैं। और कोई? सुदामा को इज welcoming and worshipping him. We don't find specifically pranam, but yes, anyone from online? Sudama, वहाँ पे भी सुदामा का आ रहा है, yes. There's one more beautiful verse from Srimad Bhagavatam which I wanted to share. प्रभु जी, share दिख नहीं पाता, नहीं, इसको इधर कर देंगे, मेरे को यहाँ से नीचे से सेलेक्ट नहीं कर पा रहा। So I wanted to share this verse from the 10th canto of Srimad Bhagavatam. Hopefully it is there. Yes. Yes. So we can try to recite this shloka, जिसमें भगवान एक बहुत स्पेशल ऑबिसेंसेस ऑफर कर रहे हैं, एंड दैट इज टू हिमसेल्फ। भगवान खुद को प्रणाम कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ गिरि गोवर्धन। Okay, so devotees can kindly repeat, Tasmai namo vraja janai, Tasmai namo vraja janai, Saha chakra atman atmane, Saha chakra atman atmane, Aho pashyata shailosyo, Aho pashyata shailosyo, Rupino anugraham vedat, Rupino anugraham vedat. Together with the people of Praja, Lord bowed down to his form of Govardhan hill, and thus, in effect, of offering obeisances to himself. Then he said, Just see how this hill has appeared in person and bestowed mercy upon us. Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki. It is clear from this verse that Lord Krishna had expanded himself and was appearing in his normal form among the festival goers of Vrindavan, while simultaneously manifesting himself as the great form of Govardhan hill. Thus, in his form as a child, Krishna led the residents of Vrindavan in bowing down to his new incarnation as Govardhan hill. And to all, he pointed out the great mercy bestowed by his divine form of Govardhan. Lord Krishna's amazing transcendental activities were certainly in keeping with the festive atmosphere. Shri Giriraj Govardhan ki jai. So Giriraj is Krishna himself, and he is also a devotee of Krishna. So Giriraj is in dual role. तो यहाँ पर भगवान स्वयं बता रहे भगवान का न्यू इनकारनेशन, Prabhupada is writing the new incarnation of Krishna. तो परम भगवान भी बता रहे कि कैसे ये दंडवत प्रणाम करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और दंडवत प्रणाम करने से जो उसका जो मेन एसेंस है वो क्या है, व्हाट इज द मेन एसेंस दैट वी वांट टू derive by offering obeisances, what is the main mood or what it helps, क्या फायदा होता है दंडवत प्रणाम करने से, what is the main idea or main theme behind offering obeisances, इसका याद करना। और कोई? yes bro, it's the mood of humility, विनम्रता आती है। हाँ, तो हमें झुकने की आदत नहीं है, तो हम जब भगवान के सामने जाते हैं, डिवोटीज के सामने जाते हैं, तो हमें झुकना होता है, तो हमें विनम्रता आती है। तो ऐसे एक भक्त थे, एक किंग थे, एक राजा थे, बुर्दवान के राजा,
और उनके वो एक बार भक्ति सिद्धांत श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वहाँ पे बुर्दवान में प्रवचन के लिए पहुँचे थे, पंडाल प्रोग्राम के लिए। तो एक सज्जन थे, वो बुर्दवान के राजा को बोले कि आप भक्ति सिद्धांत महाराज के पास चलिए। ये फोटो तो कोई और है, लेकिन बोले भक्ति सिद्धांत महाराज के पास आप चलिए, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत लर्नेड हैं। तो उन्हें बोला ठीक है, मैं चलूंगा। तो रास्ते में जब उनको लेके जा रहे थे राजा को, तो वो बोले कि आप महाराज से मिलेंगे तो पहले जाते ही ना प्रणाम करना। तो उन्होंने बोला कि नो आई डोंट बो डाउन टू एनीवन। तो उन्होंने बोला नहीं, ही इज ए ग्रेट सेंट, ही इज ए महाराज, महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, इसलिए आपको उनको जाके प्रणाम करना चाहिए। तो उन्होंने, राजा ने बोला कि ही मे बी महाराज बट आई एम ऑल्सो महाराज, आई एम ऑल्सो ए किंग, सो आई विल रिस्पेक्ट हिम, बट why to bow down? We should not bow down. I don't bow down to anyone, whoever he may be. तो जो भक्त थे उन्होंने एक दो बार समझाया, उन्होंने कहा राजा आप उसको क्या बोले। तो वहाँ पे जब गए तो भक्ति सिद्धांत महाराज वहाँ पे व्यास आसन पे बैठे हुए थे और लेक्चर शुरू हो चुका था। और जैसे ही वो राजा गए, तो जैसे ही वो बैठे तो ऑटोमेटिकली उनका सिर झुक के मतलब ऑटोमेटिकली वो झुक गए, उन्होंने प्रणाम किया भक्ति सिद्धांत महाराज को। और बाद में उन भक्त को बोलने लगे कि मुझे पता नहीं क्या हुआ, मेरा तो पूरा प्लान था कि मैं प्रणाम नहीं करने वाला हूँ, मैं झुकने वाला नहीं हूँ। तो बोले पहले मैं ये सोच रहा था अगर मैं झुकूंगा तो उनको भी झुकना चाहिए फिर, बिकॉज ही इज ऑल्सो महाराज, आई एम ऑल्सो महाराज। लेकिन ही सेड कि, तो फिर उन भक्त ने समझाया कि द ऑरा ऑफ ए स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी इज सो पावरफुल, द स्पिरिचुअल ऑरा, कि इवन इफ वी डोंट वांट इट, समटाइम वी गेट दिस फोर्स्ड मर्सी। हम लोग even if we are not ready for it, Krishna so kindly helps us to develop that mood of humility, without which spiritual progress is not very easy. So हमने कल obeisance पे कुछ चर्चा किया था, उसके अलग अलग टेक्निक्स भी थे कुछ, उसमें किसी का कोई टिप्पणी, कोई क्वेश्चन है, फिर हम आगे चलते हैं। यस प्रभु। आइडियली इन सम साइड, क्योंकि भगवान के सामने हमें वो करना नहीं चाहिए, सो वी हैव टू बी लिटिल बिट केयरफुल। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमें सारे प्रिंसिपल क्लियर हो जाएंगे जब हम ये जानेंगे कि कृष्णा इज ए पर्सन। भगवान की जो विग्रह है वो कोई बस एक स्टैच्यू या कोई वो नहीं है, इसलिए जितने भी ओबीसेंसेस के रूल हैं वो सारे इसी प्रिंसिपल को देखकर हमें पता चल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब पर्दा बंद है ऑल्टर का, तो मतलब भगवान कुछ रेस्ट कर रहे हैं या खा रहे हैं या फिर कुछ उनका श्रृंगार हो रहा है, तो मान लो आपका श्रृंगार हो रहा है तो आपको कुछ समय कोई प्रणाम करे, इट विल बी डिस्टर्बेंस, राइट? तो बिकॉज कृष्णा ऑल्सो वॉन्ट्स टू रेसिप्रोकेट। तो जो प्योर डिवोटी हैं, ऑफ कोर्स दे आर वेरी स्पेशल। ये ऐसा बताया गया है कि प्योर डिवोटी का पोजीशन इतना स्पेशल है कि अगर आप डीटी वर्शिप भी कर रहे हैं, आप भगवान की आरती कर रहे हैं, और मान लीजिए उस रूम में कोई और नहीं है, आप अकेले हैं, और कोई भगवान के महान भक्त आते हैं, तो भगवान की आरती को रोककर आप उनको पहले स्वागत करना चाहिए। समझ रहे हैं? मतलब भगवान की आरती को भी जैसे आप कर रहे हैं, हम चावल डुला रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो यू कैन पोज इट, घंटी रख दीजिए, पहले उन भक्त को स्वागत कीजिए। सो प्योर डिवोटी का पोजीशन बहुत स्पेशल है। लेकिन प्योर डिवोटी नॉर्मल, इन द नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, जो प्योर डिवोटी वो चाहेंगे कि जब आरती चल रहा है तो वो भी आके भगवान को प्रणाम करते हैं। तो वो जब भगवान को प्रणाम करते हैं, हम भी भगवान को प्रणाम करते हैं उस समय। आप समझे? जैसे महाराज आए तो ऑफकोर्स वहां पे अगर आप चले गए उसको में, तो आपने महाराज को ऑफकोर्स प्रणाम करेंगे, लेकिन भगवान के बिल्कुल सामने वो भी भगवान को प्रणाम करते हैं और आप उनके साथ भगवान को प्रणाम करते हैं। दैट इज हाउ वी शो आवर रिस्पेक्ट टू हिम। एंड ऑफकोर्स जैसे ही फिर हमें मौका मिलता है पूरा हम उनको प्रणाम करते हैं। करेक्ट सदन? लॉर्ड शिवा सेइंग पार्वती नदिया राजनाथ, हाँ, यस, भगवान की जो पैरिफेरनिया है, जैसे डिवोटी, हाँ, प्योर डिवोटी तुलसी महाराज, ये जो है भगवान के भी वर्शिप से भगवान की वर्शिप से भी ज्यादा। इसलिए बताया, इवन तुलसी महारानी का तो बहुत ही एलिवेटेड पोजीशन है। इवन कोई एक ग्रेट डिवोटी भी आ जाते हैं, उस समय हम डीटी वर्शिप को थोड़ा पोस्टपोन कर सकते हैं,
इवन चलते हुए डीटी वर्शिप को रोक सकते हैं। आप भगवान को श्रृंगार कर रहे हो ऑल्टर में, आपको पता चला कि कोई सीनियर डिवोटी आए, आप बाहर में आके उनको प्रणाम करके, रिसीव करके, पानी पिला के, बैठा के फिर आप वापस जा सकते हो। कृष्णा विल बी वेरी हैप्पी। सो बट एट द सेम टाइम जो आपने पूछा ऑल्टर के सामने, तो इस तरह से तो जब भगवान का ऑल्टर बंद हो तो प्रणाम नहीं करना है। और जब हम, एक और एटिकेट है, जब हम आते हैं टेम्पल हॉल में तो छोटा बेल भी लगा हुआ है, कहीं पे बेल नहीं भी होता है, जैसे घर में भी जा रहे हैं तो हम छोटा सा क्लैप करना चाहिए हमें ऑल्टर के टेम्पल हॉल में घुसते ही, हल्का सा। और अगर भगवान का ऑल्टर खुला है तो फिर हमें बोलना चाहिए जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, राधा पार्थसारथी की जय, ऐसे हल्का सा, मतलब वैसे तो जोर से भी बोल सकते हैं बट वी हैव टू सी कि क्या एनवायरमेंट है। सो वी हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल ऑल्सो, बट वी शुड ग्लोरीफाई द लॉर्ड जैसे हम टेम्पल के अंदर आए। और कल एक भक्त क्वेश्चन पूछ रहे थे, लास्ट में इंडिविजुअली पूछ रहे थे, अच्छा क्वेश्चन था। जैसे भागवतम क्लास चल रहा है या वैसे सेशन चल रहा है, उस समय हम आए टेम्पल हॉल में तो हमें ऑबिसेंसेस ऑफर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो अगर ऐसे क्लास चल रहा है, मान लो क्लास यहाँ पे चल रहा है और ऑल्टर वहाँ पे उधर दूर है और बीच में कोई मतलब भक्त नहीं है, ऐसा कोई डिस्टरबेंस नहीं, चुपचाप जाके आप प्रणाम करके बैठ सकते हो, देन इट इज फाइन। लेकिन अगर आप क्लास चल रहा है और ऑल्टर नज़दीक है बिल्कुल, और क्या कहते हैं, इट मे कॉज ए डिस्ट्रैक्शन फॉर द स्पीकर, और या फिर ऑडियंस के लिए दिक्कत करेगा, तो फिर हमें क्लास में बस प्रणाम करके वहाँ पे सारे वैष्णव को और स्पीकर को, जो असेंबल डिवोटीज हैं उनको वहीं से प्रणाम करके बैठ जाएं, और जब क्लास खत्म हो फिर आप ऑल्टर में प्रणाम करें। तो इस तरह से, तो जो श्रवण का प्रोसेस है, जो वैष्णव का संघ है, उसको बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है कि हम उसको मिस ना करें। एक बार भक्ति सिद्धांत महाराज के लेक्चर दे रहे थे, तो एक भक्त वो दर्शन कर रहे थे, और फिर दर्शन करके जब आके बैठे तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने बोला, आपका आंखों का एक्सरसाइज हो गया, कि आप आंखों के एक्सरसाइज से भगवान का दर्शन कर रहे थे। लेकिन भगवान का असली दर्शन हम कैसे करते हैं? बाय हियरिंग फ्रॉम द लॉर्ड। ऑल राइट, एनी अदर थॉट्स ऑन ऑफरिंग प्रणाम्स? कोई और किसी का कोई ऐड करना चाहता है या क्वेश्चन है? फिर हम आगे चलते हैं। यस प्रभु जी। ये ऑनलाइन, ये थोड़ा सेंसिटिव है। ऑल ग्लोरीज टू प्रहलाद प्रभु। हरे कृष्ण। तो मुझे एक थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन था कि जैसे आपने बताया कि अगर कोई सन्यासी आ जाए, से सन्यासी की मतलब उनका बॉडी भी प्योर होता है छोड़ने के बाद, तो अगर ऐसे सन्यासी आ जाए तो आपने बताया कि हम साइड में जाकर उनको प्रणाम कर सकते हैं। और दूसरा आपने बताया कि अगर ऐसे कोई सीनियर डिवोटी लाइक सन्यासी या फिर कोई भिक्षा गुरु आते हैं तो हम ये भी मतलब वर्शिपिंग नहीं छोड़ सकते। तो अब दोनों एक दूसरे में थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है। एक तरफ हम भगवान की रिस्पेक्ट करते हैं, उनको साइड में जाकर प्रणाम कर रहे हैं, और एक जगह हम भगवान को उतना रिस्पेक्ट देते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं। और तीसरा आपने बताया कि उनके मतलब इसको समझना कि वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम वर्शिपिंग कंटिन्यू करते हैं। तो ये तीनों को एट द सेम टाइम कैसे समझें? So yes, if miss, the most important thing is Krishna will look at our intentions, कि हमारा इंटेंशन क्या है। हम देख सकते हैं उस समय क्या क्या सर्कमस्टेंस। मान लो वो डिवोटी यहीं रहते हो, रोज ही आते, तो आपको रोज वर्शिप छोड़ने का जरूरत नहीं। लेकिन उनको ऐसे स्पेशल डिवोटी आ गए एकदम से, कोई महाराज आ गए, कोई जरूरी नहीं है महाराज, जरूरी नहीं है सन्यासी, कोई बहुत सीनियर एलिवेटेड डिवोटी आ गए, तो आप उस समय उनको छोड़ के रिसीव कर सकते हैं। So it is always a spradha, it is always a competition between the Lord and Lord devotees. कृष्णा अपने डिवोटीज को ज्यादा रिस्पेक्ट देना चाहते हैं और डिवोटीज भगवान को ज्यादा रिस्पेक्ट। तो ये तो भगवान और भक्तों में कॉम्पिटिशन है, तो हम तो इसमें कहाँ निर्णय ले पाएंगे। लेकिन वी हैव टू डू द नीडफुल, वी हैव टू बी प्रैक्टिकल, वी हैव टू डू द नीडफुल। इट शुड बी इन नो सिचुएशन ए वैष्णवा प्रेजेंस शुड बी डिसरिस्पेक्टेड। लेकिन इसका बस ये मतलब ही नहीं, हम बस इतना ही कह रहे हैं कि भगवान के बिल्कुल ऑल्टर के सामने की बजाय थोड़ा यहाँ से वहां से ऐसे प्रणाम कर सकते हैं, क्योंकि कई बार आप प्रणाम करोगे भगवान के ऑल्टर की ओर, पांव चला जाएगा या इस तरह से होगा। सो वी हैव टू बी केयरफुल, सो वी हैव टू इन नो कंडीशन वी कैन निग्लेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ए वैष्णवा। अब उसको कैसे एक्नॉलेज करना है वो प्रैक्टिकल होगा, केस टू केस बेसिस पे होगा। एनीवन वांट्स टू ऐड समथिंग टू दिस? हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा भी क्वेश्चन था
एक प्रभु जी जैसे तो अभी प्रभु जी ने पूछ लिया कि कोई बड़े आते हैं गुरु महाराज है तो हमको पूजा पूजा छोड़ के सबको ही करना चाहिए, लेकिन जो और भी आदरणीय है उनके लिए भी हमें सेम भाव रखना चाहिए। एक ये था मेरे को। और दूसरा ये था प्रभु जी जैसे हेल्थ प्रॉब्लम होती है, नी में प्रॉब्लम है या कुछ है, तो इतना फ्रिक्वेंटली तो दंडवत नहीं हो पाता है। जैसे एक बार कर दिया फिर कोई दूसरे वरिष्ठ वो आते हैं तो फिर बार बार करना पॉसिबल है, तो उस इस कंडीशन में क्या करना चाहिए? यस माता जी, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जो वृद्ध हैं भक्त या फिर जिनको हेल्थ का चैलेंजेस है, डेफिनेटली उनको बहुत प्रैक्टिकल होना चाहिए। उनको अगर वो झुकने में प्रॉब्लम है, आपके घुटने में दर्द है, तो हम पूरे हार्ट के साथ हम उनको प्रणाम कर सकते हैं। इवन बिना झुके भी हम प्रणाम कर सकते हैं। थोड़ा सा हम बेंड हो सकते हैं, जैसा हमें उस समय ऐसा नहीं करना कि हम टाइम प्लेस सर्कमस्टांसिस के हिसाब से है, तो उस समय ऐसा नहीं करना कि अरे ये शरीर क्या है, शरीर है वैसे ही नहीं रहना, 2 दिन बाद तो पूरा कर लो और पता चले वो घुटने का जो हड्डी जुड़ा हुआ था वो उसमें दर्द होना शुरू हो गया और फिर 10 दिन तक आप रूम से ही बाहर नहीं निकल पाए। सो वी हैव टू बी प्रैक्टिकल, है ना। कृष्णा जैसे कि ऊपर बैठने का भी है। सो इफ डिवोटी इज नॉट फीलिंग वेल इरिस्पेक्टिव ऑफ द एज, तो ऊपर क्लास में ऐसे बोलते हैं कि स्पीकर से ऊपर नहीं बैठना है, लेकिन वी हैव टू बी प्रैक्टिकल। जिसके जैसे कमर में दर्द है या फिर कुछ चैलेंज है, हेल्थ चैलेंज है, सो वी कैन सिट, है ना। दैट इज इट्स ए वेरी प्रैक्टिकल मूवमेंट, इसमें ऐसा नहीं है। तो इस तरह से माता जी आप हृदय से और पूरे श्रद्धा के साथ उनको प्रणाम, बिना पूरा दंडवत किए आप प्रणाम कर सकते हैं। वैष्णव इज वेरी काइंड, दे विल अंडरस्टैंड। ओके, यस माता जी। नॉन वैष्णवास को ऐसे तो सारे ही लोगों के अंदर फिर आपको वो ट्रांसीडेंटल विजन डेवलप करना पड़ेगा। ब्राह्मणा गवि हस्तिनी सुनी सेवा स्वाकेचा पंडिता समदर्शिना। तो आप सबके हृदय में भगवान के दर्शन कर रहे हैं। जैसे प्रहलाद महाराज का ऐसा स्थिति था। आपने देखा नरसिम्हा मूवी में, प्रहलाद महाराज जहाँ देखते थे उनको नारायण दिखाई देते थे। तो ये तो बड़ा एलिवेटेड कॉन्शियसनेस है माता जी। अगर आप इस कॉन्शियसनेस पे आ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बताते हैं कि एक वैष्णवा, what to speak of respecting other Vaishnava, what to speak of respecting the Lord, he respects even an ant. छोटे से छोटे लिविंग एंटिटी को भी एक वैष्णवा रिस्पेक्ट करता है, बट लेकिन वो रिस्पेक्ट कैसे देना है वो हमें समझना पड़ेगा। जैसे अब आपको रास्ते में यहाँ से घर जाने तक 100 चींटियां मिला, अब आप उनको प्रणाम करोगे एक एक बार, तो इट मे बी वेरी डिफिकल्ट। या फिर शेर आ गया, अब शेर को आप प्रणाम कर रहे हो कि वांछा कल्पतरुभ्यश्च पास हिंदू भे बच्चा, और वो आपका आखिरी प्रणाम होगा जीवन का, है क्या नहीं? फिर बाकी पूरा भी नहीं हो पाएगा। है? तो शेर को रिस्पेक्ट करना है। शेर को रिस्पेक्ट करना है कैसे? उससे थोड़ा दूरी बना के। ये रिस्पेक्ट है शेर का, शेर के और आपके संबंध का ये रिस्पेक्ट है कि थोड़ा दूरी बनाना है उधर से, है कि नहीं? बट इफ यू गो टू वृंदावन और इफ यू you go to Goshala, there are so many beautiful Krishna's cows, they are serving Krishna, तो आप उनको प्रणाम कर सकते हैं ऐसे, है ना। So the philosophy is that we want to respect Krishna, we want to respect the devotees and we want to respect everyone, लेकिन वो कैसे रिस्पेक्ट को एक्सप्रेस करना है, that is एक बार एक भक्त थे, हम जब कॉलेज में पढ़ रहे थे, प्रीचिंग शुरू हुआ था, तो किसी भक्त ने यही वाला श्लोक समझाया था, पंडिता समदर्शिना। तो एक प्रभु जी थे, वो नए नए आए थे, एक ही 2 बार आए थे, स्टूडेंट ही थे नए, तो उनका सबको रिस्पेक्ट करना है। मतलब लिटरली वो अगले दिन जाके अपनी क्लास के सारे स्टूडेंट्स को दंडवत प्रणाम करने लगे और तो खबर फैल गया पूरे कॉलेज में कि कोई स्टूडेंट है सबको दंडवत प्रणाम कर रहा है लेट कर। सो वी हैव टू सी हाउ टू रिस्पेक्ट, बट प्रिंसिपल शुड बी क्लियर। ओके, हम आगे बढ़े दंडवत प्रणाम से। कोई और क्वेश्चन? कोई बात नहीं, वी आर स्लो बट वी कैन। सेक्शन था उसमें, हाँ, सदानंद प्रभु वांट्स टू ऐड समथिंग। यस, हाँ हाँ, हाउ टू रिस्पेक्ट ना, तो इसमें वो बताते हैं, माइक को ऑन ही रख सकते हैं। 1.9.9 में यहाँ पे विष्णुदेव किस तरीके से, हाँ, विष्णुदेव की यस, स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन यहाँ प्रभुपाद जी परपट में दिख रहे हैं प्रभु जी कि
he was certainly unable at that time to welcome and receive them physically because he was neither at his home nor in a normal healthy condition, but he was quite fit by the activities of his sound mind, and Hmm. therefore he could utter sweet words, Yes. with hearty प्रभु expressions, इसको बंद कर। utter sweet word with hearty expression, and all of them were well received. Yes. Totally, आगे भी then performed one's duty by physical work, by mind and by words. यस तो भीष्म देव का प्रभु जी एग्जाम्पल बता रहे हैं, बहुत सुंदर एग्जाम्पल है जिसमें भीष्म पितामह, आप पता है वो तो प्रणाम नहीं कर सकते क्योंकि वो बाणों की शैया पे लेटे हुए हैं, लेकिन वो सबको इतना सुंदर तरीके से वेलकम करते हैं बाय हिज एक्सप्रेशंस एंड बाय हिज वर्ड्स, काइंड वर्ड्स। तो मुझे इसमें याद आ रहा है, हम लोग हिज ग्रेस भी प्रमुख प्रभु जी के जब फाइनल डेज चल रहे थे लास्ट में, तो उनके घर गए थे एक दिन, और प्रभु जी बिल्कुल लास्ट स्टेज पे थे, 2-4 दिन बाद वो डिपार्ट कर गए थे। तो हम सबको जाके प्रणाम कर रहे थे, और हम तो प्रभु जी जो है वो प्रणाम वैसे बोल भी नहीं पा रहे थे, आवाज भी निकल रहा था, लेकिन बहुत मुश्किल से अपने हाथों को ऐसे, फिंगर्स को ऐसे टच कर रहे थे। तो जैसा स्थिति होगा उसके हिसाब से तो भीष्म देव का भी, लेकिन जब हम हेल्दी हो तब ऐसा ना करें, बग प्रणाम कर रहे हैं कृष्ण, है ना। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत करना भी है। दंडवत मतलब डंडे के समान गिर जाना है, दंडवत, लाइक ए स्टिक। और एक सुंदर एग्जांपल बताइए शास्त्रों से, एक बहुत सेलिब्रेटेड डिवोटी हैं जो भगवान को आके प्रणाम करते हैं और जिनके आचरण से हम सीखते हैं कि वृंदावन में कैसे जाना है। अक्रूर प्रभु, किधर से आवाज आई? बैकुंठा से, आकाशवाणी। खंबे के पीछे बैठे क्या प्रभु जी? अच्छा, लग रहा है नरसिंहदेव प्रकट होने वाले उधर से। तो अक्रूर जी का ये सुंदर सुंदर, बहुत सुंदर, अगर आपको कभी वृंदावन जाना है तो पहले पढ़िए कि अक्रूर जी कैसे वृंदावन में एंटर करते हैं। यहाँ पे जस्ट उसका कुछ हल्का सा मैं आपको शेयर करता हूँ। यस, कृष्णा बुक में पूरा चैप्टर दिया हुआ है। समवन कैन रीड, करण प्रभु, कैन यू रीड दिस इन द माइक? Mic is not working. Then I will read. Sri Akrura visits Vrindavan. Akrura's journey to Vrindavan is exemplary. One who intends to visit Vrindavan should follow the ideal footsteps of Akrura and always think of the pastimes and activities of the Lord. As soon as one reaches the boundary of Vrindavan, he should immediately smear the dust of Vrindavan over his body without thinking of his material position and prestige. Actually, one cannot go to Vrindavan by purchasing a ticket. The process of going to Vrindavan is shown by Akrura. तो अक्रूर जी भगवान के बहुत महान भक्त हैं, आप जानते हैं, और वो वृंदावन जैसे ही पहुंचते हैं वो तुरंत अपने रथ से उतरकर पूरा ब्रज की भूमि को पहले प्रणाम करते हैं। और इनफैक्ट वहां पे पहुंचने से पहले भी अक्रूर जी जो है वो क्या करते हैं, पूरे रास्ते यही मेडिटेट करते रहते हैं कि मैं ऐसे जाऊंगा, जब मैं वृंदावन में पहुंचूंगा मैं रथ से उतरूंगा और नीचे प्रणाम करूंगा, जब मैं प्रणाम करूंगा कृष्ण और बलराम को तो कृष्ण मुझे उठा लेंगे और कृष्ण मुझे उठाकर मुझे गले लगा लेंगे, और इस तरह से मैं उनके दर्शन। तो अक्रूर जी पूरे रास्ते में यही मेडिटेट कर रहे हैं और फिर वहां जाकर एग्जाम्पलीफाई कर रहे हैं। इसलिए जब हम वृंदावन जाएं खास तौर से, तो जाते ही वृंदावन की भूमि को स्पर्श करते ही हमें क्या करना चाहिए, पहले दंडवत प्रणाम। और जो मिट्टी विट्टी लग गया है, ब्रज रज, उसको हमें झाड़ नहीं देना चाहिए। अरे हाइजीनिक, आई वांट टू सैनिटाइजर लाना प्रभु थोड़ा। तो इट इज ब्रज रज जो है वो इज द मोस्ट स्पेशल गिफ्ट ऑफ ब्रजा, और वो अगर हम उससे अपनी बॉडी को स्मीयर कर रहे हैं देन इट इज सो वंडरफुल। ओके, तो हम सब बस हमें ट्रैफिक का भी ध्यान रखना है। पीछे कई बार सड़क पे इतना जोर से बस आ रही होती है, आपको मैं प्रणाम कर रहा हूँ प्रभु जी, मेरा क्या गलती था, तो गलती फिर दूसरा ही होगा। तो हमें देख के साइड पे प्रैक्टिकली, so we have to be practical, at the same time we should be very absorbed in the proper mood. Okay, so pranam. I think the next topic is about taking darshan of the Lord. So time is already going to be over. If anything more on pranam, then we can maybe close on time, or if you want we can go to the
meditating upon the deity. What do devotees want? ओके हम कल जाएंगे मेडिटेशन ऑन डीटीज पे, हम टाइम पे किसी दिन खत्म भी करते हैं। माता जी का कुछ क्वेश्चन है? यस, उधर पहले ऑफलाइन। प्रभु जी, जैसे कि भगवान को सामने से प्रणाम करते हैं, लेफ्ट हैंड से या राइट हैंड से, ये एक बार सबका क्लियर कर दीजिए। वैसे तो है थोड़ा सा माइंड में, क्या क्या? एक बार और जैसे भगवान को किधर हैंड से प्रणाम करना चाहिए, मतलब किधर की साइड से लेट के करना चाहिए, कोई सामने से करता, कोई इधर से, कोई उधर से। अच्छा, तो और प्रभु बाकी तो कल हम कर रहे थे चर्चा कि भगवान को यथासंभव परिस्थितियों में हमें भगवान को लेफ्ट साइड में, भगवान हम हमारे लेफ्ट साइड में हो, हम ऐसे प्रणाम करते हैं। गुरु और वैष्णव जनों को हम लेफ्ट साइड में भी कर सकते हैं और सामने से भी कर सकते हैं। और कभी कभी ऐसा भी परिस्थिति हो जाता है क्योंकि किसी को बैक ना हो, भगवान को हमारे पाँव, ऐसा ना हो कि गुरु को प्रणाम कर रहे हैं और भगवान को पाँव दिख रहा है, तो है ना, तो उस समय हमें देखना पड़ेगा कि किस दिशा से प्रणाम कर सकते हैं। मतलब जैसे मैं उदाहरण बता रहा था, उज्जैन मंदिर है, उसमें प्रभुपाद जी इस तरफ को हैं, तो इधर डीटीज हैं, यहाँ पे प्रभुपाद जी हैं, तो आप अगर उधर से प्रणाम करोगे तो सीधा भगवान को पाँव हो जाएगा। अगर लेफ्ट साइड से करोगे तो वहां से हम राइट साइड से करते हैं, उल्टा करते हैं। वैसे जो सामने का प्रणाम है वो विष्णु तत्व को हम लेफ्ट साइड में करते हैं, और जो देवी हैं, जो बाकी डेमी गॉड्स हैं, बाकी जो वर्शिपेबल पर्सनालिटीज हैं, उनको हम स्ट्रेट प्रणाम करते हैं। सो द हार्ट, दैट लेफ्ट साइड प्रणाम इज रिजर्व फॉर कृष्णा एंड द वैष्णवास। बाकियों को हम सामने से प्रणाम कर सकते हैं। ओके, प्रभु जी राइट से किसी को नहीं करते, जैसे डेमी गॉड्स को नहीं करते राइट से, मतलब सामने से करते हैं सबको। राइट, स्ट्रेट on the right side. Okay, so demigods, Prabhuji is saying right side. I've not done it much, but Prabhuji says it's right side. We can do the demigods, but how do we do it practically? Opposite, like this. But Lord Shiva temple and some other temples. But I have seen in our acharyas, maharajas, when they go to Lord Shiva temple, they are offering obeisances straight करते हैं। राइट मैंने कभी देखा नहीं है, बट कहीं लिखा है वैसे, मैंने भी थोड़ा सा देखा था। बट महाराज लोग भी जब जाते हैं, सो लॉर्ड शिवा, डेमी गॉड्स, सामने से प्रणाम करते हैं। यस, कुशाग्र प्रभु वांट टू ऐड समथिंग। यस, जब हम डेमी गॉड्स को प्रणाम करें तो वांछा कल्पतरुभ्यस्य पास सिंधु वेवचा पतिता नाम पा, और खास तौर से जब भगवान शिव को करें तो वैष्णवा नाम यथा शंभु। तो हमें और उनसे प्रार्थना क्या करना चाहिए? डेमीगॉड से कि प्लेसमेंट हो जाए भगवान मेरा, तब मैं कृष्ण भक्ति अच्छे से करूंगा। नहीं, वी ओनली वांट दैट प्लीज गिव मी, you have so much love for Krishna. If you are going to Lord Shiva, you know Lord Shiva so much love for Krishna. He has so much love. You know the story of that महाप्रसादम। आपको महाप्रसादम का स्टोरी सबको पता ही होगा कि भगवान शिव को कितना प्रेम है भगवान से। एक बार नारद मुनि वैकुंठ गए थे और वहाँ पे भगवान नारायण ने जस्ट प्रसादम पाया था, और माता लक्ष्मी जो है वहाँ पे थे, तो नारद मुनि ने उनको प्रार्थना किया कि माता लक्ष्मी, मुझे भगवान की प्लेट से कुछ महाप्रसादम चाहिए। So mother was very kind. She gave some महाप्रसाद, का भी स्टोरी है पूरा, but then she gave him महाप्रसादम। नारद मुनि को महाप्रसाद दे दिया, और नारद मुनि ने जैसे ही महाप्रसाद मिला सारा तुरंत पा लिया एकदम से, और जैसे ही पाया तो पूरी एक्सटेसी में आ गए, एकदम नाचने लगे। जो पहले ही गाते हैं बजाते हैं नारद मुनि आप, और एक्सटेसी में आ गए। और तो ऐसे एक्सटेसी में बजाते बजाते वो कैलाश पर्वत के ऊपर से जा रहे थे, तो फिर लॉर्ड शिवा ने देखा, अरे व्हाट्स हैपनिंग टू नारदा, आज तो कुछ बहुत ज्यादा एक सुपर एक्सटेसी में है। और फिर उन्होंने नारद मुनि को बोला, व्हाट हैपेंड टू यू, आर यू ओके? अभी तो इतना तो मैं भी महाकाल के समय में, इतना प्रलय के समय में इतना नृत्य नहीं करता हूँ, यू आर डांसिंग सो मच। देन नारद मुनि सेड, यू नो टुडे आई गॉट समथिंग वेरी स्पेशल। उन्होंने बोला, क्या स्पेशल मिला? आई गॉट महाप्रसादम ऑफ द लॉर्ड। एंड देन लॉर्ड शिवा immediately became very sad. He said, you got Mahaprasadam and you took it all alone? You never thought about your friend? आपने मेरे बारे में सोचा ही नहीं एक बार भी, आपने सब महाप्रसादम अकेले ले लिया। And then Narad Muni said, oh my gods, I'm very sorry.
और जैसे ही नारद मुनि ने ऐसा किया, उनके हाथ पे थोड़ा सा महाप्रसाद लगा था, क्योंकि एक्सटेसी में वो हाथ धोना भी भूल गए थे, तो उनके हाथ पे लगा था, उनकी फिंगर पे। लॉर्ड शिवा इमीडिएटली टुक हिज फिंगर एंड पुट इट इन हिज माउथ। भगवान शिव ने उनका फिंगर को अपने मुंह में डाल लिया, एंड देन लॉर्ड शिवा स्टार्टेड डांसिंग because he came into ecstasy. And then Parvati came running. He said, "Oh, it's not yet the time of pralay. It's not the time that you should dance so much. What happened to you?" He said, "I got Mahaprasadam of Lord Vishnu. That's why I'm in ecstasy." And then Parvati became, "I thought I was your wife. You should have given to me as well. You have taken it all alone." वो अब पति कहाँ समझा ही सकते हैं इतना। वो बता रहे थे कि भाई उसका उंगली मैंने मुंह में ले लिया, थोड़ा इतना टाइम था मेरे पास कि मैं सोच के आपके लिए रखता। बोले मेरे लिए क्यों नहीं रखा आपने महाप्रसाद? एंड देन द लेटर दैट स्टोरी कम्स दैट देन बिकॉज ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ मदर पार्वती, देन द लॉर्ड डिक्लेयर्ड दैट एवरीवन विल गेट महाप्रसाद। एंड इन जगन्नाथपुरी, आफ्टर लॉर्ड जगन्नाथ, द फर्स्ट ऑफरिंग ऑफ प्रसादम गोज टू बिमला देवी। तो उन्होंने बोला कि आपसे हमेशा आपको पहले प्रसाद मिलेगा, तो सबसे पहले जगन्नाथ जी को प्रसाद लगता है, उसके बाद किसको मिलता है? बिमला देवी को जाता है। So like that. So there are many pastimes. So Lord Shiva loves Krishna so much. So therefore when we go to Lord Shiva, so we should pray that please give me some fraction of love that you have for Krishna. Please bless me so that I can become a sincere Vaishnava. You are Vaishnavanam Yatha Shambhu. You are the greatest Vaishnava, and I am the lowest among all the Vaishnavas, aspiring Vaishnavas. So like, and when we go to Mother Durga, what should we pray? Now Navratras are going on. भगवान माता दुर्गा से क्या प्रार्थना करना चाहिए? हाँ, हैं? मुझे छोड़ दो, हैं? इस जन्म के लिए अपना effect कम करो। So Mother Durga is one of the most obedient servants of Krishna. You know that? वो भगवान के प्लान के हिसाब से यहाँ पे हमें पूरा त्रिताप से प्रताड़ित करके रखते हैं कि हम भगवान या तो प्योरीफाई होकर भगवान के पास जाएं, और अगर इधर का ही प्लान है तो फिर वो माया के रूप में हमें अट्रैक्ट करके रखती हैं। सो वी वांट टू टेक शेल्टर। सो अल्टीमेट प्रेयर्स इज टू, इवन द गोपीज दे यूज्ड टू गो टू कात्यायनी देवी, श्रीमती राधा रानी यूज्ड टू गो टू कात्यायनी देवी। सो द पर्पस इज टू गेट कृष्णा, the underlying principle. Even Brajvasis, if you go to, when I go to Braja, I see Brajvasis, they are more worshipping Lord Shiva than sometime even more than Krishna. Yes, because but their prayers are for Krishna. वो कृष्ण को तो अपने गांव के मानते हैं, अपने गांव के अपने ही आदमी हैं, and then Lord Shiva, okay, is Lord, like that, isn't it? Brajvasi, they worship Lord Shiva quite a lot. काफी ब्रजवासी भगवान शिव को करते हैं. So because of that. All right, so thank you so much. We should stop here for today and try to continue in the next session. We will keep you posted. Oh, yes, thank you.